Good morning, students. I am Sanjay Kumar Singh, Associate Professor, Sagar Institute of Science and Technology. In this lecture series, we will discuss about the second unit of strength of material. Actually, in first unit already we have discussed. तो फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ते हैं अबाउट फोर्स मीन्स एक्सियल फोर्स एंड इट्स इफेक्ट लाइक एलोंगेशन, कंट्रैक्शन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन etc. Similarly, in second unit we are discussing about the effect of transverse load and its effect, moment and its effect. Means how stress changes, how due to moment or due to transverse load, how you can find the stress, magnitude of stress, nature of stress, strain, various slope and deflection etc. According to RGPV syllabus, in second unit we will cover 4 topics. First topic is shear force and bending moment diagram. Second topic is bending stress in beam. Third topic is shear stress in beam. And fourth topic is slope and deflection. These are the 4 topics we will cover here in second of strength of material. So before knowing shear force and bending moment diagram, first topic, we should know small topics. We will discuss here, like say एक मेंबर कंसीडर किया, इस मेंबर का हमें जूम करें कि से दिस डायमेंशन इज लेंथ ऑफ द मेंबर, दिस इज से width of the member and this is depth or height or thickness of the member. तो फर्स्ट थिंग, ये मेंबर मैंने लिया, इस मेंबर में क्या होगा बेटा, 3 डायमेंशन, एक लेंथ, दूसरा विड्थ एंड तीसरा डेप्थ। तो किसी भी मेंबर का वो एक्सिस जो लेंथ से पास करता है ना, द एक्सिस पासेस थ्रू द लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लाइक से along the length, this is the axis, this axis is along the length or longitudinal dimension, then this axis is called longitudinal axis. Longitudinal axis. Similarly, the axis passes through or parallel to width of the member. जो एक्सिस मेंबर के विड्थ के पैरेलल होगा या होता है, उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं लैटरल एक्सिस। लैटरल एक्सिस। सिमिलरली थर्ड वन, द एक्सिस पैरेलल टू द डेप्थ और थिकनेस और हाइट ऑफ द मेंबर इज आल्सो कॉल्ड लैटरल एक्सिस। इज आल्सो कॉल्ड लैटरल एक्सिस। मींस the axis along the length of the bar or member or beam is called longitudinal axis. The axis along the width is also called lateral axis, and the axis passes through or parallel to the depth of the member is also called lateral axis. Means a member having one longitudinal axis and 2 lateral axes. So means say this is length L, width I am indicating by a small w and depth by a small d.
देन इस मेंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया हो सकता है। ये एरिया हो सकता है L इंटू D, दूसरा हो सकता है L इंटू W, तीसरा हो सकता है डेप्थ इंटू विड्थ। अगर हम इंक्लाइन सरफेसेस को कट करें तो n नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया हो सकता है, लेकिन उस एरिया में इस मेंबर के का वो एरिया जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। मैंने क्या बोला कि मेंबर का वो एरिया जो इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। लाइक यहां पर हम बात करें तो ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसका परपेंडिकुलर ये जो एरिया दिख रहा है, दिस एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिमिलरली n नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। दिस एरिया इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द longitudinal axis, this area is also perpendicular to the longitudinal axis। तो हम जहां कहीं से भी longitudinal axis के परपेंडिकुलर अगर हम इस मेंबर को कट करेंगे तो जहां से भी कट करेंगे तो जो एरिया हमको दिखेगा that area is called cross sectional area। area is called cross sectional area। area is called cross sectional area। Now, तो यहाँ अभी तक हम लोगों ने जाना about longitudinal axis means the axis along the length of the bar or member is called longitudinal axis, the axis parallel to the width or the axis parallel to the depth of the member is called lateral axis, and the area perpendicular to the longitudinal axis of the member or beam or bar is called cross sectional area। ये बेसिक चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। अब इससे हम बात करते हैं कि इस मेंबर पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स तो फोर्स जो यहां अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स यहां से मेंबर पर ऐसे लग सकता है, टेंसाइल इन नेचर इस डायरेक्शन में, टेंसाइल या कंप्रेसिव। दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में लग सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो फोर्स यहां इंक्लाइन लग सकता है, से W फोर्स विद एंगल थीटा। इसको अगर हम रिजॉल्व कर देंगे, यहां अगर इंक्लाइन फोर्स W है तो रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट यहां इसका मिलेगा W cos थीटा और दूसरा मिलेगा यहां W sin थीटा। फोर्स जिस एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसके नाम क्या हो जाता है cos और उसके परपेंडिकुलर के साथ क्या हो जाता है sin। तो यहाँ W जो फोर्स हम दिखा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल ऐसे क्या बना रहा है एंगल थीटा, तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा W cos थीटा एंड इसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा वर्टिकल, तो वर्टिकल के अलॉन्ग क्या हो जाएगा W sin थीटा। तो जो ये फोर्स इंक्लाइन लग रहा था जब हम इसको ब्रेक किए तो एक हो गया हॉरिजॉन्टल और दूसरा हो गया वर्टिकल, सिमिलर टू लाइक दिस। यानी कि एक फोर्स क्या हो गया पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दूसरा फोर्स क्या हो गया पैरेलल टू द लैटरल एक्सिस। तो यहां अगर हम बात करें कि ये मेंबर पर जो दो फोर्स, एक फोर्स ये लग रहा है अगर लग रहा है और दूसरा फोर्स ये लग रहा है, जो दोनों फोर्स में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि ये जो फोर्स है इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है पैरेलल है या मेंबर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल हो या मेंबर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर हो तो उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इस नॉर्मल फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और perpendicular to the cross sectional area of the member or beam or bar is called normal force। सेकंड, अगर हम इस फोर्स की बात करें, इस फोर्स की अगर हम बात करें तो ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है
इसका लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल, मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या मेंबर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है, तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं शियर फोर्स, शियर फोर्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स या ट्रांसवर्स लोड। तो चूंकि हम अपना फर्स्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो हमको शियर फोर्स जानना बहुत जरूरी है कि शियर फोर्स होता क्या है ना। तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है, तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं शियर फोर्स और ट्रांसवर्स फोर्स। जहां तक नॉर्मल फोर्स की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ नॉर्मल फोर्स ये हम लोगों ने पढ़ा है यूनिट 1 में। एलोंगेशन, कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग नॉर्मल फोर्स के सारे इफेक्ट्स को हम पढ़ते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ शियर फोर्स और इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है, यहां नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स, अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर होगा, तो इसका टेंडेंसी क्या होगा कि मेंबर का जो लेंथ है इसको इंक्रीज करे या डिक्रीज करे ना। तो यहां से नॉर्मल फोर्स की टेंडेंसी ये। लेकिन अगर हम यहां बात करें ट्रांसवर्स फोर्स, अगर ये मेंबर है, अगर ये मेंबर है, अगर नॉर्मल फोर्स जो यूनिट 1 में हम पढ़े थे, दिस इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, इट मे बी टेंसाइल, इट मे बी कंप्रेसिव। तो नॉर्मल फोर्स मतलब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर बॉडी पर नॉर्मल फोर्स लगेगा तो मेंबर के लेंथ को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर फोर्स टेंसाइल है तो लेंथ इंक्रीज होगा, अगर फोर्स कंप्रेसिव है तो लेंथ डिक्रीज होगा। लेकिन ट्रांसवर्स फोर्स की अगर हम बात करें तो ये मेंबर या बीम या बार है, अगर यहां ट्रांसवर्स फोर्स अप्लाई होगा तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स मेंबर जो है ये क्या होगा, बेंड होगा। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, शियर फोर्स और ट्रांसवर्स फोर्स, इसके कारण मेंबर क्या होगा, एलोंगेट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मेंबर क्या है, बेंड होगा। तो यहां हम पढ़ेंगे कि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स फोर्स और शियर फोर्स ना, हाउ स्ट्रेस ऑकर्स और व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस या मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप या मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन। ये चारों टॉपिक यहां हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना जरूरी था कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है, लेटरल एक्सिस क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स या ट्रांसवर्स फोर्स क्या होता है। अब इसके बाद हमको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले छोटी छोटी चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि यहां हम अब यहां बात करेंगे यूनिट सेकेंड में अबाउट ट्रांसवर्स फोर्स। ट्रांसवर्स फोर्स मतलब कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो मेनली लॉन्गिट्यूडनल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड लगता है ना, इट ऑकर्स मेनली इन केस ऑफ बीम। तो हम जाने कि फर्स्ट जो टर्म है बीम, व्हाट इज ए बीम। तो बीम को हम डिफाइन करते हैं कि
इट इज ए मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर कैरिंग ट्रांसवर्स लोड। बीम स्ट्रक्चर का वो मेंबर है जिस पर ट्रांसवर्स लोड लगता है, मतलब कि उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगता है। अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में जो रूफ से कनेक्टेड होता है मेंबर, जिसको हम बोलते हैं बीम, जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको बोलते हैं कॉलम या पिलर, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसको बोलते हैं हम बीम, जिसके ऊपर पूरा जो रूफ है उसका लोड उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो जो रूफ का जो टोटल लोड लग रहा है वो कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी कि दैट इज द एग्जांपल ऑफ शियर फोर्स और ट्रांसवर्स लोड। तो यहां बीम की अगर हम बात करें, बीम को डिफाइन करें तो इट इज ए मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर कैरिंग ट्रांसवर्स लोड। तो मैंने यहां यूज किया कि मेंबर यानी कोई एलिमेंट और ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब असेंबली ऑफ लिंकेजेस where there is no relative motion between any two linkages। यानी कि अगर कोई असेंबली, बहुत सारे लिंक मिल करके, मेंबर मिल करके अगर एक असेंबली बना है और वहां किसी भी दो लिंक के बीच में अगर आपस में रिलेटिव मोशन अगर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। जैसे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में क्या है बेटा? वॉल है, फ्लोर है, रूफ है, बीम है, कॉलम है, और किसी एक दूसरे के बीच में कहीं भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है। अगर पिलर बीम के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। ट्रस, रेलवे ट्रस की बात करें या ब्रिजेस की बात करें तो जी ब्रिज जो बनता है उसमें बहुत सारे लिंकेज मिल करके एक ब्रिज बनता है, लेकिन ब्रिज के एक लिंक और दूसरे लिंक के बीच में किसी तरह का कोई रोटरी या ट्रांसलेटरी या लीनियर कोई मोशन नहीं होता है, रिलेटिव मोशन नहीं होता है। तो जब एक मेंबर दूसरे मेंबर, अगर किसी भी असेंबली में एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में किसी तरह का कोई रिलेटिव रोटरी मोशन नहीं हो रहा है, मतलब एक साथ, तो अगर यहां एक दूसरे के बीच में अगर कोई रिलेटिव रोटरी मोशन या रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। मतलब एक साथ सभी मेंबर शिफ्ट होगा, एलोंगेट होगा या कॉन्टेक्ट होगा या डिस्प्लेस होगा। तो हम बीम को डिफाइन करें कि बीम क्या है? स्ट्रक्चर का एक मेंबर है जिस पर क्या लगता है बेटा? कैरिंग ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड का मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। तो यहां बीम को हम डिफाइन करें कि मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर कैरिंग ट्रांसवर्स लोड। इसके साथ दो तीन वर्ड और जानना जरूरी है कि यूजुअली बीम का जो पोजीशन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि यूजुअली बीम प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। सेकंड वन जो बीम को हम डिफाइन करते हैं कि बीम का डायमेंशन along the longitudinal axis होता है वो much larger than the dimension along the lateral axis। यानी कि along the longitudinal axis अगर हम बात करें तो बीम की बात कर रहे थे, तो along the longitudinal axis क्या हो गया बेटा? लेंथ। along the lateral axis width, along the lateral axis that is depth। यानी कि यूजुअली बीम प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, बीम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, और इसका जो डायमेंशन अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस डायमेंशन क्या होगा? लेंथ। अलोंग द लेटरल एक्सिस डायमेंशन क्या होगा? विड्थ एंड डेप्थ और थिकनेस और हाइट। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो डायमेंशन होगा ये डायमेंशन मच लार्जर देन द डायमेंशन अलोंग द लैटरल एक्सिस, यानी कि लेंथ जो होगा वो विड्थ और डेप्थ के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा होगा। तो बीम के लिए हमको इतना जानना चाहिए कि इट इज ए मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर कैरिंग ट्रांसवर्स लोड, फर्स्ट कंडीशन। यूजुअली बीम प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दैट इज सेकंड, एंड थर्ड वन इज the dimension of beam along the longitudinal axis is much larger than the dimension along the lateral axis। मतलब कि बीम का लेंथ उसके विड्थ और उसके डेप्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये बीम का डिफिनेशन। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम रूफ की ही बात करें, रूफ में बहुत सारे बीम मिल करके रूफ बिल्डिंग में बना होता है, अगर ये बीम है तो
तो बीम तो हवा में तो नहीं रहेगा, इसको एक पोजीशन पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सपोर्ट लेना पड़ेगा। या तो सपोर्ट एक एंड पर होगा, या तो सपोर्ट दोनों एंड पे होगा, या तो सपोर्ट सेंटर में कहीं हम अप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहां बीम को उसके पोजीशन पर मेंटेन करने के लिए हमको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की जरूरत पड़ती है। तो जनरली जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो वेल नोन टाइप्स ऑफ सपोर्ट होता है जिसके बारे में हम जाने, तो सेकेंड वन, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। Mainly there are three types of support. One is called roller support. Roller support. Second one is called hinge support. Hinge support. Hinge support is also called hinge support. And third one is called fixed support. There are three types of support. One is roller support, hinge support, fixed support. तो बीम के लिए इसमें से या तो कोई एक सपोर्ट होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ दो सपोर्ट होगा, या दो से ज्यादा होगा ना, डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो यहां अगर हम बात करें एक एक के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें। फर्स्ट वन इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट के लिए जो हम सिंपल यूज करते हैं, ये थोड़ी देर के लिए मान करें कि ये बीम है, दिस इज बीम एंड दिस इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट की बात करें, जस्ट बेटा जूम करें आप, रोलर जस्ट लाइक ए स्केट्स और व्हील, यानी कि अगर कोई बीम है जो रोलर सपोर्ट, एक इंच पर रोलर सपोर्ट है, तो अगर यहाँ रोलर है यानी जस्ट लाइक ये व्हील है, तो यहाँ अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स जैसे ही अप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू। मतलब कि अगर सपोर्ट रोलर है और इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो सपोर्ट जो है इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के अगेंस्ट में कोई रिएक्शन ऑफर नहीं करेगा। यहाँ रोलर है, हम फोर्स अप्लाई किए, ये मूव होना शुरू हो गया। मतलब कि अगर सपोर्ट रोलर है तो हॉरिजॉन्टल मोशन को, हॉरिजॉन्टल फोर्स को प्रिवेंट नहीं करेगा। जैसे ही हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करेंगे, ये मूव होना शुरू हो जाएगा। मूव होना शुरू हो जाएगा मतलब इस फोर्स को रेसिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर सपोर्ट रोलर है तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, मतलब यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के अगेंस्ट में कोई रिएक्शन ऑफर नहीं करेगा। यानी कि सपोर्ट अगर रोलर है तो यहां से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। क्योंकि हमने फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया और मूव होना शुरू हो गया बॉडी, रोलर सपोर्ट इसको मूव होना शुरू करा दिया, यानी कि उसको रोका नहीं। रोकेगा तो क्या होगा बेटा, रिएक्शन डेवलप होगा। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव होना शुरू हो गया। मतलब कि अगर सपोर्ट रोलर है तो इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं, अगर इसको हम मान लीजिए कि यहां से टिल्ट करना चाहे, रोटेट अगर इसको हम करें, तो जब हम टिल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इल्यूडर टर्न हो जाएगा। मतलब कि स्केट से हम चल रहे हैं, क्या होगा, गिर सकते हैं आगे, मतलब वो टिल्ट कर सकता है, मतलब वो रोटरी मोशन को भी प्रिवेंट नहीं करता है। तो जैसे ही हम यहाँ रोटेट करना चाहेंगे, बॉडी क्या हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब रोटरी मोशन को भी ये प्रिवेंट नहीं कर रहा है, यानी कि मूवमेंट को भी ये रेसिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ सेकंड वन, रिएक्शन ड्यू टू मूवमेंट, रिएक्शन ड्यू टू मूवमेंट इज इक्वल टू ऑल्सो इज इक्वल टू जी। अब थर्ड हम बात करें, अगर यहां हम इसके ऊपर खड़े
खड़े हो जाएंगे तो क्या करेगा, नीचे जाने नहीं देगा। यानी कि अगर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डाउनवर्ड मोशन को ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होने नहीं देगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होने नहीं दे रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन ऑफ, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन ऑफर कर रहा है। यानी कि वर्टिकल मोशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। रोक रहा है मतलब सेम अमाउंट का रिएक्शन ऑफर कर रहा है। तो इस केस में वर्टिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहां थर्ड अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट क्या हो गया बेटा, जीरो। रिएक्शन ड्यू टू मूवमेंट इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट क्या हो गया, जीरो। लेकिन वर्टिकल रिएक्शन इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। इट एग्जिस्ट मींस दिस सपोर्ट विल नॉट अलाउ द बीम टू मूव इन डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन। अगर इसके मोशन को अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन के मोशन को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब सेम अमाउंट का वहां रिएक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब वर्टिकल रिएक्शन ऑफर कर रहा है, तो यानी कि वर्टिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो आप बेटा ध्यान रखेंगे, पब्लिक सेक्टर वगैरह में आते रहता है कि मैक्सिमम रिएक्शन ऑफर्ड बाय द रोलर सपोर्ट इज इक्वल टू, तो मैक्सिमम रिएक्शन ऑफर्ड बाय द रोलर सपोर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफर नहीं किया, रिएक्शन ड्यू टू मूवमेंट जीरो। रिएक्शन कौन ऑफर कर रहा है, ओनली वर्टिकल मोशन को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब इट ओनली ऑफर वर्टिकल रिएक्शन। मींस रोलर सपोर्ट अगर कहीं भी है तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ऑफर करेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो, रिएक्शन ड्यू टू मूवमेंट जीरो। तो इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन। नाउ अब आते हैं हम सेकंड जो सपोर्ट है दैट इज हिंज सपोर्ट। अब ये हिंज सपोर्ट के लिए जो हम सिंपल यूज करते हैं, हिंज सपोर्ट के लिए दिस इज बीम एंड दिस इज हिंज सपोर्ट। ये बीम हिंज सपोर्ट के ऊपर है। अब हिंज सपोर्ट आपके समझने के लिए आप ध्यान रखें, आपके घर में दरवाजे होंगे जिससे हम अंदर आते हैं, तो जो डोर होता है, डोर फ्रेम के साथ जो कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ हिंज, जिसको हिंदी में बोलते हैं कब्जा। तो कब्जा का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, हिंज। तो अगर हम बात करें और उस डोर को जो हिंज के थ्रू, कब्जा के थ्रू फ्रेम से कनेक्टेड होता है, अगर उसको हम डोर को पकड़ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींच पाएंगे क्या, नहीं खींच पाएंगे। मतलब कि जो हिंज सपोर्ट है वो हॉरिजॉन्टल बॉडी के हॉरिजॉन्टल मोशन को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। यानी कि अगर इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी के हॉरिजॉन्टल मोशन को ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। हॉरिजॉन्टल मोशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। हॉरिजॉन्टल मोशन को प्रिवेंट करेगा, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन ऑफर कम करेगा। सेकंड वन, अगर हम डोर के ऊपर बैठ जाएं तो डोर के ऊपर बैठ जाए तो डोर नीचे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यानी कि अगर यहां वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो मेंबर को नीचे मूव होने नहीं देगा। मतलब वर्टिकल मोशन को हिंज सपोर्ट क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन ऑफर करेगा, दैट इज आर। दिस इज रिएक्शन ऑफर बाय द सपोर्ट RH, दिस इज द वर्टिकल रिएक्शन ऑफर बाय द सपोर्ट RB। लेकिन जैसे ही डोर पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, डोर क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। मतलब कि टर्निंग या मूवमेंट को प्रिवेंट नहीं करता है। यानी कि जैसे ही यहां हम अगर मूवमेंट अप्लाई करेंगे, ये बॉडी को क्या करेगा, रोटेट, अलाउ करेगा टू रोटेट। तो यानी कि ये मूवमेंट को क्या करेगा, प्रिवेंट नहीं करेगा। यानी तो टोटल अगर हम बात करें इन केस ऑफ हिंज सपोर्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब इट ऑफर्स
horizontal reaction, it offers horizontal reaction. Second one, vertical motion को prevent कर रहा है, means it offers horizontal vertical reaction. हॉरिजॉन्टल मोशन को प्रिवेंट किया मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफर कर रहा है, वर्टिकल मोशन को प्रिवेंट किया मतलब वर्टिकल रिएक्शन ऑफर कर रहा है। लेकिन जैसे ही रोटेट किए, डोर पर आपने फोर्स अप्लाई किया, डोर टर्न हो गया, यानी कि मोमेंट को अलाउ, मोमेंट जो है उसको अलाउ कर रहा है, मतलब मोमेंट के अगेंस्ट में किसी भी तरह का कोई रिएक्शन ऑफर नहीं कर रहा है, मोशन को प्रिवेंट नहीं कर रहा है। तो यहां थर्ड वन रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट, अगर हम बात करें तो रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी। तो अगर सपोर्ट हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट के पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, वर्टिकल रिएक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट जीरो। तो अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर वगैरह में अगर आ जाए कि सपोर्ट हिंज है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, दो, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और दूसरा वर्टिकल रिएक्शन। जैसे कि रोलर सपोर्ट हम अभी देखे थे, तो अगर सपोर्ट रोलर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सिर्फ एक, दैट इज द वर्टिकल रिएक्शन। सपोर्ट अगर हिंज है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, दो, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब थर्ड टाइप का सपोर्ट की अगर हम बात करें, थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट इज फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट के लिए हम सिंबल ये यूज करते हैं, दिस, ये हो गया बीम, दिस इज बीम एंड दिस इज सपोर्ट, दैट इज फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट के लिए जस्ट आप एज्यूम कीजिए कि वॉल है, वॉल में कोई कील या कोई मेंबर वॉल के अंदर आपने सीमेंट से फिक्स कर दिया। उसके बाद से जब हम उसको खींचेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वॉल उसको अलाउ नहीं करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन उसके ऊपर बैठ जाए तो नीचे नहीं आएगा, अगर हम उसको रोटेट करना चाहें तो रोटेट नहीं होने देगा। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ऑलवेज हम यहाँ पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मशीन डिजाइन में, ऑलवेज हम बात करते हैं बिफोर फेल्यूर, नॉट आफ्टर फेल्यूर। आप ये बोलेंगे कि मैं उसको हाथी से खिंचवा दूं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहर आ जाएगा, तो उस केस में दीवार टूट जाएगा। टूट गया मतलब क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम बात करते, अब हम बात कर रहे हैं फिक्स सपोर्ट के बारे में। तो दिस इज द सिंबल ऑफ फिक्स सपोर्ट। यहां एक कैसा फिक्स सपोर्ट है, अगर हम यहां हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करने से ये जो सपोर्ट है इसके हॉरिजॉन्टल मोशन, बॉडी का हॉरिजॉन्टल मोशन होने नहीं देगा, मतलब इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन ऑफर करेगा हॉरिजॉन्टल। अगर हम इसमें वर्टिकल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को होने नहीं देगा, यानी कि वर्टिकल जो सपोर्ट है ये वर्टिकल रिएक्शन ऑफर करेगा। इसके बाद अगर हम मोमेंट की बात करें, अगर इसको रोटेट करना चाहें, रोटेट करना चाहेंगे तो सपोर्ट प्लेस को रोटेट होने नहीं देगा, रोटेट होने नहीं देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि सपोर्ट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन ऑफर कर रहा है, तो इसके रोटेटिंग मूवमेंट है इसको क्या कर रहा है, रिवर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर सपोर्ट फिक्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 3, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 3। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सपोर्ट, वर्टिकल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सपोर्ट एंड रोटेशन मींस मोमेंट। मोमेंट के अगेंस्ट में क्या होगा, सपोर्ट रेसिस्टिंग मोमेंट ऑफर करेगा। इन केस ऑफ दिस सपोर्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन, maximum number of reactions offered by the fixed support is equal to this horizontal reaction, vertical reaction and moment.
रेसिस्टिव मोमेंट। अगर फिक्स सपोर्ट है तो तीनों रिएक्शन जो है ऑफर करेगा। अगर सपोर्ट फिक्स है तो उस केस में प्रोजेक्टर मोशन बॉडी में नहीं होगा, वर्टिकल मोशन नहीं होगा, एंड जो मेंबर है वो रोटेट नहीं होगा। So reaction offered by the fixed maximum number of reaction offered by the fixed support is equal to 3. That is horizontal reaction offered by the support, vertical reaction offered by the support, and resistive moment. तो ये हो गया about type of support, roller support, hinge support, and fixed support. Roller support maximum number of reaction offer कितना करेगा? एक, that is only vertical reaction. Hinge support maximum number of reaction कितना ऑफर करेगा? दो, that is horizontal reaction and vertical reaction. Fixed support maximum number of reaction कितना ऑफर करेगा? 3, यानी कि horizontal reaction, vertical reaction and assistive moment. अब सपोर्ट के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बीम। Beam कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ बीम। एक्चुअली बीम इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सपोर्ट। बीम को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट। तो मेनली बीम्स आर ऑफ फर्स्ट कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। A beam is said to be cantilever if one end of beam is fixed. This is beam. One end is fixed, other end is free. अगर किसी बीम का एक एंड अगर फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है तो उस टाइप के बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। सेकंड वन, simply supported beam, simply supported। if अगर बीम की एक एंड पर रोलर सपोर्ट और दूसरे एंड पर अगर हिंज सपोर्ट है, अगर बीम के एक एंड पर रोलर सपोर्ट दूसरे एंड पे हिंज सपोर्ट है तो कोई भी हो सकता है, यहां हिंज हो सकता है, यहां रोलर हो सकता है, यहां रोलर हो सकता है, यहां हिंज हो सकता है। तो अगर बीम के एक एंड पर रोलर सपोर्ट है और दूसरे एंड पे हिंज सपोर्ट है तो उस टाइप के बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड। थर्ड वन इज ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, अगर सपोर्ट अगर बीम में दो सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है और सपोर्ट दोनों एंड पर ना हो करके अगर इन बिटवीन है, सेंटर में है कि बीम जो है किसी एक सपोर्ट या दोनों सपोर्ट से बाहर ओवरहैंग अगर हो रहा है तो उस टाइप के बीम को बोलते हैं ओवरहैंग। इस केस में क्या देख रहे हैं कि जो बीम है रोलर सपोर्ट से भी ओवरहैंग हो रहा है, बाहर जा रहा है और हिंज सपोर्ट से भी बाहर जा रहा है, ओवरहैंग हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसको ओवरहैंग बोथ साइड्स। ऐसा भी हो सकता है कि बीम का एक सपोर्ट बीम के एक एंड पर है और दूसरा सपोर्ट इन बिटवीन है, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ओवरहैंग। यहां ओवरहैंग क्या है? वन साइड है, यहां ओवरहैंग क्या है? बोथ साइड है। तो जो सपोर्ट अगर बीम जो है किसी एक सपोर्ट या दोनों सपोर्ट से ओवरहैंग हो रहा है, उससे बाहर जा रहा है, तो उस टाइप के बीम को हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। तो कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम। Fourth one is continuous beam. Continuous beam means if a beam
3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो अगर 2 से ज्यादा सपोर्ट अगर है बीम में तो उसको हम लोग उस टाइप के बीम को बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। फिफ्थ वन इज फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड बीम। अगर बीम का दोनों एंड्स, दिस इज बीम, this is fixed support and this is also fixed support। अगर बीम का दोनों एंड पर फिक्स सपोर्ट है, तो सपोर्ट है अगर वो फिक्स्ड है, फिक्स टाइप का है, तो उस टाइप के बीम को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बीम। तो these are the classification of beam according to support। Cantilever means one is fixed, other is fixed। Simply supported beam means supports are at ends, one border, other one overhanging beam means if beam overhangs over the support either one side or both sides, then it is called overhanging beam। If a beam having more than two supports, then that type of beam is called continuous beam। If both supports of the beam at the ends are fixed, then that type of beam is called fixed। So these are the classification of beam। Now the next topic is types of load। ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे, फर्स्ट बीम को डिफाइन किए थे, इट इज ए मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर कैरिंग ट्रांसवर्स लोड और शियर लोड और शियर फोर्स। तो जो ट्रांसवर्स बीम का मतलब कि इट शुड कैरी ओनली ट्रांसवर्स लोड। अब वो ट्रांसवर्स लोड जो है किस टाइप का होगा, तो हमको लोड जानना चाहिए कि एक्चुअल प्रैक्टिस में किसी मेंबर पर, एलिमेंट पर जो लोड लगता है वो लोड होता किस टाइप का है। तो हम मेन लोड को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप से। वन इज कॉल्ड पॉइंट लोड, सेकंड वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली वेरी लोड, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं यूडीएल। तो मेरी जो मेरे कंपोनेंट्स में जो लोड लगता है दैट इज पॉइंट लोड, यूडीएल, यूडीएल is uniformly distributed load, UVL is uniformly variable। अब यहाँ आते हैं फर्स्ट वन पॉइंट से cantilever if load acting on cantilever say load P1, if load acting at a point of the beam, अगर लोड बीम के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर लग रहा है तो उस टाइप के लोड को हम लोग बोलते हैं पॉइंट लोड। Practically it is not possible to apply a load at a particular point, but the concept behind this, if the load is acting at a point of any member or bar or beam, then that type of load is called point। Second one, uniformly distributed। By the name itself it is clear that uniformly distributed means intensity of load throughout same from one end to other end or from part of the portion। So second one, uniformly distributed load, say it is a cantilever beam, intensity of load UDL को रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, this is the representation of UDL। say intensity of UDL is say a small w, unit
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूटीए का जो डब्ल्यू इंटेंसिटी का जो लोड है वो थ्रू क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू, 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 थ्रू क्या है इंटेंसिटी डब्ल्यू। तो अगर इंटेंसिटी लोड की इंटेंसिटी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम और पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द बीम सेम थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पोर्शन में यूटीए होता है, इंटेंसिटी हो गया डब्ल्यू। तो यहाँ यूटीए की इंटेंसिटी कितने डिस्टेंस में है भाई, L1 डिस्टेंस में। तो इस केस में क्या देख रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक थ्रू आउट इंटेंसिटी क्या है लोड की डब्ल्यू। तो अगर लोड की इंटेंसिटी थ्रू आउट द लेंथ और पोर्शन ऑफ द लेंथ और पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द बीम अगर इंटेंसिटी लोड की अगर सेम है तो उस टाइप के लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दैट इज यूडीएल। थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। से इट इज ए कैंटिलीवर बीम, या इंटेंसिटी ऑफ लोड intensity of load at this point, that is W, and at this point it is G, total length of the beam, that is say A। यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लोड क्या है, जीरो। ग्रेजुअली जीरो से इंक्रीज होते लोड एक दूसरे ऊपर कितना हो गया, डबल न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ क्या देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लोड जो है ग्रेजुअली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हैवी हो रहा है। तो अगर लोड इस टाइप का है कि लोड की इंटेंसिटी एक से लेकर दूसरे या वन पोर्शन से लेकर अदर पोर्शन तक अगर वो हैवी हो रहा है, लोड की इंटेंसिटी अगर हैवी हो रहा है तो उस टाइप के लोड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड और यूवीएल। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर बात करें, अगर हम सभी के घर में वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक से दिस इज वाटर लेवल, समझने में आसानी होगी। तो जो वाटर टैंक का चाहे तो सर्कुलर हो, सिलिंड्रिकल हो या रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर शेप का हो, तो ये वाटर टैंक का ये हो गया वर्टिकल सरफेस वाल, ये हो गया बॉटम सरफेस। वाटर का लेवल जो है, जब हम पानी भरते हैं तो वाटर का लेवल थ्रू आउट बॉटम से जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, सेम। तो ऑन द बॉटम सरफेस पर अगर हम फोर्स या प्रेशर कैलकुलेट करने जाएं तो बॉटम सरफेस पर थ्रू आउट जो प्रेशर या फोर्स की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है, सेम हाइट का वाटर थ्रू आउट क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है। तो इंटेंसिटी बॉटम सरफेस जो सिंगल टैंक का होगा उस पर जो लोड होगा उसका इंटेंसिटी थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज। लेकिन अगर हम वर्टिकल वाल की बात करें तो वर्टिकल वाल में वाटर सरफेस के पास जो फोर्स लगेगा वो मोर और लेस क्या होगा, जीरो। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे वाटर का लेवल बढ़ते जाएगा, प्रेशर की इंटेंसिटी, फोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ते जाएगी और मैक्सिमम प्रेशर जो हमको मिलेगा वो कहां मिलेगा, एट द बॉटम सरफेस। तो वाटर टैंक का जो वर्टिकल वाल है उस पर जो लोड लगता है वो किस टाइप का, दैट इज यूवीएल, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। बॉटम सरफेस पर जो लोड लगता है वो किस टाइप का लगता है, यूडीएल, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आल्सो अगर हम जनरली मैकेनिकल डिजाइन में मैकेनिकल में हम सेल्फ बॉडी के सेल्फ वेट को नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर बॉडी का सेल्फ वेट कंसीडर करें तो सेल्फ वेट बॉडी का ऑलवेज एक्ट करता है एज ए यूनिट। थ्रू आउट इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बारे में। तो ये तीन वेल नोन लोड है, पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवी, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ चर्चा की। अब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम कितनी चीजें जाननी थी, हम लोगों ने लेटरल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, क्रॉस सेक्शनल एरिया,
शियर फोर्स, नॉर्मल फोर्स। बीम क्या होता है, कितने टाइप का बीम होता है, लोड क्या होता है, कितने टाइप का लोड होता है, इतने कॉन्सेप्ट हमको जानने की जरूरत थी। इसके बाद एक छोटा सा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सपोर्ट रिएक्शन। क्योंकि जब हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने जाएंगे तो हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम छोटा सा यहां से हाउ टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट क्या, एक हम सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, जिसका सिंपली सपोर्टेड बीम, हमें जो तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम पर लोड लग रहा है 1.2 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, नाम देते हैं जहां लोड से सपोर्ट है पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज। The distance from A to B, that is say 2 meter, distance from B to C, that is say 4 meter, and distance from C to D, that is say 6 meter. Already हम पढ़ चुके हैं, जब टाइप ऑफ सपोर्ट पढ़ रहे थे तो टाइप ऑफ सपोर्ट में क्या है कि रबर सपोर्ट हो या हिंज सपोर्ट हो, दोनों सपोर्ट क्या करता है, वर्टिकल रिएक्शन ऑफर करता है, यानी कि मेंबर के वर्टिकल मोशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये जो लोड लग रहा है, बीम है, बीम के ऊपर लोड लग रहा है 2 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 2 न्यूटन का लोड लग रहा है बी पॉइंट पर, 4 न्यूटन का लोड लग रहा है सी पॉइंट पर। तो अगर ये सपोर्ट को हटा दें तो बीम क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा। मतलब बीम यहां स्टेबल तभी है जो अगर ये 6 न्यूटन का लोड डाउनवर्ड लग रहा है तो दोनों सपोर्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का रिएक्शन ऑफर कर रहा है, दोनों सेम होगा तभी ये बीम जो है इस पोजीशन पे रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहां से हमको फाइंड आउट करना है कि ये 2 न्यूटन 4 न्यूटन का जो लोड लग रहा है, इस लोड के कारण कितना सपोर्ट ए जो है ये कितना रिएक्शन ऑफर कर रहा है, और सपोर्ट बी जो है ये कितना, सपोर्ट डी जो है ये कितना रिएक्शन ऑफर कर रहा है। तो यहां अपना एम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Ra, where Ra is the reaction offered by the support A and Rd it is the reaction offered by the support D. Our aim is to find the value of Ra and Rd. अब Ra and Rd का वैल्यू निकालने के लिए क्योंकि दो अणु हैं Ra तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दो अणु का वैल्यू निकालना है तो कम से कम दो मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। तो अब 2 इक्वेशन यहां हमको फाइंड आउट करना होगा और 2 इक्वेशन का हेल्प लेकर के दो अणु का वैल्यू निकालेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा या ये पढ़े कि पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 3 फार्मूला है कि फॉर इक्विलिब्रियम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी 0, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0 एंड अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स शुड बी 0। मींस सिग्मा h is equal to 0, sigma v is equal to 0 and sigma m is equal to 0। पूरे मैकेनिक्स में यही फॉर्मूला है। अब यहाँ सिग्मा h is equal to, इस पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, 2 न्यूटन वर्टिकल है, 4 न्यूटन वर्टिकल है, Ra वर्टिकल है, Rd वर्टिकल है, तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स जो यहाँ नहीं लग रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स का इक्वेशन हम यहाँ यूज। अब अपने पास बचा दो इक्वेशन, सिग्मा v इक्वल टू 0, सिग्मा m इज इक्वल टू 0। अब सिग्मा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स शुड बी 0। अब ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है, ये दोनों इक्वेशन का हेल्प लेकर के ये दोनों अननोन का वैल्यू हम फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले यहां हम सिग्मा v इज इक्वल टू 0 लेकर चल रहे हैं। तो सिग्मा v इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0। अब ये अलजेब्रिक सम क्या है, सम तो एडिशन हो गया, अलजेब्रिक सम क्या है, तो समेशन ऑफ ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग इट्स कंसीडरिंग इट्स साइन। अगर मेंबर का साइन कंसीडर करके अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, दैट सम इज कॉल्ड अलजेब्रिक सम।
रहे हैं कि जितने वर्टिकल फोर्स है दैट इज पॉजिटिव साइन, और जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है उसके लिए पॉजिटिव साइन, और जो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है उसके लिए नेगेटिव साइन। अब यहां आ जाते हैं वर्टिकल अपवर्ड में क्या क्या है भैया, आरए साइन क्या हो जाएगा प्लस, आरडी ऐसा है वर्टिकली अपवर्ड साइन क्या हो जाएगा प्लस, इसके बाद है 2 न्यूटन कैसा है डाउनवर्ड के लिए साइन क्या लेंगे माइनस, तो -2 के बाद दूसरा फोर्स क्या है 4 का साइन 4 कैसा है डाउनवर्ड के लिए साइन माइनस, इज इक्वल टू सिग्मा v इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, अब इक्वल टू इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों नेगेटिव क्वांटिटी है, इधर रह देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि RA प्लस RD इज इक्वल टू 6, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा v का यूज करके हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया, RA प्लस RD इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा इक्वेशन सिग्मा v का यूज कर चुके हैं, अब हम यूज करने जा रहे हैं सिग्मा m इज इक्वल टू 0। सिग्मा m इज इक्वल टू 0 मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स विल बी 0। अब मोमेंट के लिए जैसे हम फोर्स के लिए हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यूज किया था, हम फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन यूज किए थे अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, इसी तरह से मोमेंट के लिए फॉर मोमेंट के लिए तो हम साइन कन्वेंशन लेकर चल रहे हैं, साइन कन्वेंशन मोमेंट क्या होता है मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे, मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मोमेंट या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, हम यहां साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, इसके लिए क्लॉकवाइज मोमेंट को कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज को कंसीडर कर रहे हैं नेगेटिव। आप चाहे तो इसको उल्टा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब साइन कन्वेंशन हम लेकर चले क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब इसके बाद से अपने पास टोटल सिस्टम में 4 पॉइंट है A B C एंड D। आप जहां चाहे A के अबाउट, B के अबाउट, C के अबाउट, D के अबाउट, किसी के अबाउट मोमेंट ले आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन टाइम बचाने के लिए टाइम सेविंग पर्पस बेहतर है कि आप सिलेक्ट करें कि जहां अननोन है उसके अबाउट मोमेंट ले। तो यहां अननोन कहां, एक RA है और दूसरा RD है। RA है एक पॉइंट पर, RD कहां है D, तो आइदर A के अबाउट ले या D के अबाउट ले लेंगे, थोड़ा सा 10-20 सेकंड का टाइम आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज मोमेंट कहीं से भी आप ले सकते हैं। तो हम यहां A के अबाउट मोमेंट लेने से A की मोमेंट अबाउट पॉइंट A के अबाउट मोमेंट, यानी कि मोमेंट हम कहां कंसीडर कर रहे हैं अबाउट पॉइंट A। टोटल सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक RA, दूसरा 2 न्यूटन है, तीसरा 4 न्यूटन है और चौथा 8 है। अब एक एक करके चारों फोर्स के कारण हम एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहां RA के कारण, इस RA फोर्स के कारण एक पॉइंट पर मोमेंट क्या हो जाएगा भैया, मोमेंट क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से कहां के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट पर आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां RA फोर्स कहां लग रहा है, एक पॉइंट पर, और मोमेंट आप कहां कैलकुलेट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर। तो एक पॉइंट से एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो मोमेंट एट पॉइंट A ड्यू टू RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एक पॉइंट RA के कारण एक पॉइंट पर मोमेंट क्या आ गया, 0। यानी कि जो मोमेंट देगा बचाव क्या देगा, 2 न्यूटन के कारण मोमेंट मिलेगा, एक 4 न्यूटन के कारण मोमेंट मिलेगा और एक RD के कारण मोमेंट मिलेगा। अब हम मोमेंट कैलकुलेट करें, तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए बेटर है कि जहां जिस पॉइंट पर आप मोमेंट ले रहे हैं
पॉइंट पर जो मोमेंट मिलेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है b से a के बीच का 2, मतलब मोमेंट क्या हो जाएगा 2 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, यानी कि मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 2 इनटू। अब आगे मोमेंट फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू फोर न्यूटन। किसके अबाउट, एक पॉइंट के अबाउट। एक पॉइंट पर पेन को पकड़ लीजिए, 4 न्यूटन कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरे इनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में धक्का दीजिए, कैसे रोटेट कराएगा ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब 4 न्यूटन का जो फोर्स है ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, मोमेंट का क्लॉकवाइज। अब मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड कितना है 4 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से। तो अब हम बात कर रहे हैं मोमेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब आते हैं यहां 4 न्यूटन जो फोर्स है ये कैसा लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इस 4 न्यूटन के कारण एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट क्या होता है हम देख चुके हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले हम डायरेक्शन की बात करें तो हम यहां एक इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं एक पॉइंट, तो एक पॉइंट पर पेन को एक को पकड़ लीजिए, दूसरे पॉइंट दूसरे इन पे 4 न्यूटन का जो फोर्स है इस डायरेक्शन में है डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरे इन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको हम धक्का दें, कैसे रोटेट हो रहा है ये, क्लॉकवाइज। मतलब मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अब आते हैं मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 4 न्यूटन का, यहां से और ए पॉइंट पे जो मोमेंट ले रहे हैं यानी कि सी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 6। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स यानी कि 4 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 इनटू 6। अब थर्ड हम मोमेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं अबाउट पॉइंट ए, किसके कारण, ड्यू टू आरडी जो फोर्स लग रहा है, जो रिएक्शन है ये इसका डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसके कारण हमको मोमेंट निकालना है, तो एक पॉइंट पर पेन को पकड़ लीजिए, दूसरे इन पर आरडी का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड, दूसरे इन पर अपवर्ड डायरेक्शन में इसको धक्का दीजिए, कैसे रोटेट हो रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आरडी जो मोमेंट लेगा ए के अबाउट उसका डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से a के बीच का क्या हो जाएगा 6 + 4 10 + 2 12। तो मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा rd इनटू। अब हम क्या देख रहे हैं कि a के अबाउट ra का मोमेंट 0 हो गया, 2 न्यूटन ने मोमेंट दिया 2 * 2 क्लॉकवाइज, 4 न्यूटन का मोमेंट मिला a के अबाउट 4 * 6 क्लॉकवाइज, rd के कारण मोमेंट मिला rd * 12 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो मोमेंट यहां क्लॉकवाइज और तीसरा मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट शुड बी 0। हम साइन कन्वेंशन में क्या ले रहे हैं, मान के चलिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अब क्लॉकवाइज पहला मोमेंट कितना है 2 न्यूटन का, तो 2 न्यूटन 2 का साइन क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि क्लॉकवाइज। इसके बाद यहां से 2 इसके बाद दूसरा मोमेंट कितना है 4 * 6 डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज मतलब साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तीसरा मोमेंट क्या है rd * 12 का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज हम करेंगे माइनस, तो क्या हो गया माइनस = अब जो नेगेटिव क्वांटिटी है उसको एक तरफ कर दीजिए, पॉजिटिव वाले को दूसरी तरफ कर दीजिए। यहां हम लिख सकते हैं कि rd * 12 = 2 * 2 4 and 6 * 4 24। तो ये हो गया 24 और ये हो गया 4, टोटल कितना हो जाएगा 28 या rd = 28/। तो यहां से फाइंड आउट करिए वैल्यू ऑफ
RD का वैल्यू 28/12। अब ये दूसरा आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ R। अब ये RD का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, RD प्लस 28/12 इज इक्वल टू 6, या RD इज इक्वल टू 6 माइनस 28/, या इज इक्वल टू LCM 72 माइनस 28, या इज इक्वल टू 44। 44/, तो यहां से हम निकालिए RA इज इक्वल टू 44/12 एंड RD इज इक्वल टू 28/, यहां RD दोनों सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू RA RD का वैल्यू हम यहां फाइंड आउट करेंगे। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमको इतनी चीजें जाननी चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। जहां भी सपोर्टिंग बीम या ओवरहैंग बीम आएगा वहां हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ये हमको बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा v = 0, सिग्मा m = 0, इसका हेल्प लेकर के हम सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थैंक यू।